Okay friends, today we are going to see one problem to draw isometric view. So in isometric view it is exactly opposite to your orthographic. In orthographic 3D view is given and we have to draw such front view, side view or top view 2D views. But in isometric problem 2D views are given, might be three views: front view, top view, side view, or front view, top view, or only front view and side view, like that in any combination. And we have to draw its 3D view, 3D object. So for this problem we have front view, this is 80 mm, and this is left hand side view. So it is just like a T-head kind of front view, and inside view it is exact vertical rectangular side view is there. So from this we have to prepare a 3D object. So the basic steps similarly to orthography, here also we have to follow three basic steps. First, to find out the total length, total height and total width. So always remember, we got the total length and height in front view, height and width in side view, and length and width in top view. We have two views, front view and left hand side view. In front view this is our length, total 80, it is directly given, and this will be our height. Height in front view it is not mentioned, but second view, left hand side view, where we have two dimensions, width and height. So width is 25, length is 80 mm. Now height is possible in front view as well as side view, but in front view there is no such dimension, so we will look for the side view. So in side view this much 50, then 30, then 20, that means this is the total height, and it must be equal to the height of front view also, because the height will remain same for front view as well as side view. So height is 100 mm. So first step is to find out length, height and width from the given views. Now the second step is to fix the position. Now to fix the position we have to draw three axes. So first we will draw like this horizontal line, then vertical axis, then 30-degree right inclination second axis, and 30-degree left inclination third axis. So we have to fix the position first, and the intersection of these three axes is a origin point O. Now about this, always remember, in front view, side view or top view there is provided one origin point O. Here it is provided here. So the question asks for isometric, they provide a front view, top view, side view, or the combination of any two. Along with there is a origin point O. So most commonly we have to pick up the front view along with the origin. Now imagine I am picking this O point, the complete front view I picked with O and shifting to here. So whether this O point and this O point, origin will match? No. So this is not the position from front view. If I pick origin point and front view and place here, so origin get match. So likewise we have to fix the position. So again I am repeating, this is the origin point, this is the complete front view. So I am picking this origin point along with front view and try to put here on this face. So origin will match. So my front view will be on this face. So front view will be here. No doubt vertical is a height and front view is here, so this is height, so this is second dimension, and in front view second dimension is length. So in front view length by height, so height is here, so this axis we have a length. So height definitely on vertical axis,
Now according to the position of front view, we decided on this 30-degree line there will be a length. So second 30-degree axis or line, it is for width. So like that we have to fix the position where the length and where is the width. For height there is no question, no doubt, vertical is the height. Now imagine, suppose O point is given here at this point. So I will pick up O point and this front view and try to put here. That time OO will match. So in that case front view will be in this face. So length will be this axis 30-degree and remaining width will be on this side. सो अभी जो हमें प्रॉब्लम दिया है उसकी पोजीशन के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि लेंथ यहाँ पे आएगा, हाइट यहाँ पे आएगा, तो थर्ड डायमेंशन विड्थ यहाँ पे आएगा। अब तीसरा जो स्टेप है वो है आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना, जो हमारी पोजीशन फाइनल होगी उसके हिसाब से। तो अब हम करेंगे क्या, एक पहले तो हमें स्केल मैच कर लेना है हमारी पेज के एज के साथ। सो योर ड्राफ्टर विल बी एग्जैक्ट हॉरिजेंटल। अब यहाँ से एक आपको हॉरिजेंटल लाइन बनानी है छोटी सी कंस्ट्रक्शन में, और कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लो। अब इस पॉइंट से हमें एक्सिस के लिए लाइंस बनानी है। सो 30-degree लेफ्ट, 30-degree राइट। So this is 30-degree right point, 30-degree left point and exact 90, that's means vertical point। वर्टिकल पॉइंट के लिए हमने ऑलरेडी अगर ड्राफ्टर इसे मैच किया है तो ये वाली साइड वर्टिकल ही आएगा। सो दिस इज़ माय ड्राफ्टर एज। सो यहाँ से मैं वर्टिकल साइड बना लेता हूँ कंस्ट्रक्शन में। अब 30-degree राइट के तरफ जो पॉइंट मिला था उसे ज्वाइन कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन बना लेता हूँ। सो यहाँ पे एक 30-degree राइट एक्सिस बना लिया, 30-degree लेफ्ट एक्सिस। हमें बनाना आइसोमेट्रिक बॉक्स। ये बहुत बेसिक है, अदरवाइज हम लाइन ड्रॉ करते समय पहले काउंट करके ही एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी मैं बेसिक स्टेप पे बता रहा हूँ कि 3 एक्सिस बनानी है, एक वर्टिकल, 30-degree राइट, 30-degree लेफ्ट। लिखना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हमारी पोजीशन के हिसाब से लेंथ आने वाला है, तो लेंथ हमारा है 80। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से 80 मार्क कर लेंगे। सो मैं इस लेंथ को मैच कर रहा हूँ। सपोज मैं 20 से काउंटिंग करना चाहता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पे आ गया 80। सो दिस इज 80 mm पॉइंट। एक्स्ट्रा जो लाइन सेगमेंट है उसे इरेज कर रहा हूँ। हाइट हमें मिली है 100 mm, तो मैं अब हाइट को ड्रॉ करना चाहता हूँ। सो हाइट सपोज मैं 30 से काउंट करना चाहता हूँ। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो यहाँ पे एंड हो रहा है हमारा हाइट। एक्सेस इरेज कर दिया। अब विड्थ हमारा इस साइड पे आने वाला है और विड्थ है 25। सो मैं अब विड्थ को मैच कर रहा हूँ स्केल, और यहाँ ओरिजिन पॉइंट से काउंट कर रहा हूँ 10, 20, 25, यहाँ एंड हो रहा है और एक्सेस इरेज कर दिया। सो जहाँ पर ये तीनों एक्सिस मिलते हैं दैट इज ओरिजिन पॉइंट ओ, तो ये ओरिजिन पॉइंट है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये सिर्फ एंगल मेज़र करने के लिए हमने ड्रॉ किया था, तो इसे भी हम निकाल देते हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइन को भी इरेज कर दिया। अब हमें आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है। अभी हमने तीनों एक्सिस बना ली एज पर आवर पोजीशन। जैसे यहाँ पे हाइट है तो बॉक्स की यहाँ पर भी सेम हाइट होगा। सो अब मैं कर क्या रहा हूँ कि वर्टिकल हाइट को मैच कर रहा हूँ। लेंथ के एंड पे आ गया और यहाँ से अगेन 100 mm ड्रॉ करना है, लेकिन 100 mm गिनने की ज़रूरत नहीं, मैं एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे ही विड्थ के इस एंड से भी 100 mm हाइट होगा, यहाँ पर भी हमें 100 mm गिनने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हो एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहे हो। अब जैसे यहाँ से बॉटम से 30-degree लाइन गई है वैसे टॉप से भी गई होगी, तो मैं अब इस लेंथ को मैच कर रहा हूँ, इस हाइट पे लेके गया और यहाँ से लेंथ को पैरेलल लाइन बना दिया। सो अगर ये 100 है तो ये ऑटोमेटिक 100 आ जाएगा, तो एक्सेस इरेज कर रहा हूँ। अब विड्थ को मैच कर रहा हूँ,
और इस हाइट पे जाके विड्थ को पैरेलल लाइन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अगर ये 100 है तो ये डेफिनेटली 100 आ जाएगा। सो एक्सेस इरेज कर दिया। अभी भी ये 3D बॉक्स नहीं बना है, आइसोमेट्रिक बॉक्स नहीं। अब यहाँ से भी विड्थ वाइज लाइन जाएगा। सो इसी विड्थ को मैच करते हुए मैं इस एंड पे लेके आया हूँ और यहाँ से एक विड्थ को पैरेलल लाइन बना दिया। अब यहाँ से लेंथ वाइज ऐसे लाइन जाएगा तब ये आइसोमेट्रिक बॉक्स बनेगा। तो इस लेंथ को मैं मैच कर रहा हूँ और इस वाले पॉइंट से यहाँ। सो अगर मैं ड्राफ्टर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ फर्स्ट 3 एक्सिस ही गिन रहा हूँ, बाकी के एक्सिस गिनने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सेस ड्रॉ करूँगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट अपने आप आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर आइसोमेट्रिक बॉक्स। सो फ्रंट व्यू यहाँ आने वाला है, साइड व्यू यहाँ। साइड व्यू में हमें दिख रहा है कि एग्जैक्ट वर्टिकल रेक्टेंगल जैसा आ रहा है 25 विड्थ का। तो ये 25 विड्थ रेक्टेंगुलर जैसे। लेकिन अब फ्रंट व्यू में अगर मैं देखता हूँ तो फ्रंट व्यू में ये हेड बना है जिसमें दोनों कॉर्नर में चाम्पर्स है 20 रेडियस का। सो अगर मैं यहाँ फ्रंट व्यू बनाना चाहता हूँ तो मुझे ये फ्रंट व्यू यहाँ आएगा, बेस टी जैसा आएगा, अब उल्टा जो इन्वर्टेड टी है, और ऊपर साइड में हेड बनेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि बेस का जो लेंथ है 80 mm ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ओ कॉर्नर इसे मुझे चेक करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी ओ इज़ अ कॉर्नर। सो अल्टीमेटली ओ इज़ अ अल्टीमेट कॉर्नर। तो अब मैं कॉर्नर से ड्रॉ करना चाहता हूँ। सो लेंथ वाइज 80 mm ये मैंने लेंथ लिया था एक्सिस पे। सो अब लेंथ 80 mm यहाँ फ्रंट व्यू में अगर लेंथ दिख रहा है तो मैं यहाँ पर भी अब ड्रॉ करते समय डार्क बना रहा हूँ। ये हो गया लेंथ 80 mm। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया यहाँ से हाइट आ रहा है, यहाँ से भी हाइट आ रहा है, लेकिन हाइट दिया नहीं है। लेकिन इस हाइट को अगर मैं साइड व्यू की तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ दिख रहा है कि एक लाइन आ गया। ये डेफिनेटली इतना हाइट ये इसी का है। सो इसका अगर प्रोजेक्शन देखता हूँ तो इट इज़ 20 mm। सो यहाँ से हाइट वाइज 20 mm। अब मैं ड्राफ्टर को हाइट को मैच कर रहा हूँ। यहाँ से 20 mm हाइट, 20 mm डार्क कर लेता हूँ। वैसे ही इस कॉर्नर से भी 20 mm हाइट, तो इस कॉर्नर से भी 20 mm हाइट डार्क कर लिया। अब जैसे मुझे यहाँ पता चल रहा है कि ये 20 mm इनवर्ड्स जा रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट नहीं है, बीच में 20 mm की गैप है। तो अगर मैं लेंथ को, ये दो जो लाइन सेगमेंट है ये इस लेंथ को ही पैरेलल है। ये मैंने लेंथ लिया था 80 mm, तो यहाँ पर उसी को पैरेलल है। तो मैं यहाँ 3D में भी लेंथ को मैच कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ कंस्ट्रक्शन में ही, तो ये लाइन इसी को पैरेलल है। अब सिर्फ इतना है कि यहाँ बीच में 20 mm का गैप है, उसके बाद ये दो डार्क लाइन सेगमेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। सेंटर आ जाएगा 80 mm है तो 40 mm पे 10, 20, 30, 40, ये हो गया 40 mm पे सेंटर। अब इस सेंटर से 10 mm लेफ्ट, 10 mm राइट। सो इसी सेंटर से 10 mm लेंथ वाइज 10 mm राइट, 10 mm लेफ्ट। सो ये दो पॉइंट मिल गए, मतलब इतना डिस्टेंस है 20। ये जो 20 mm की गैप दी है ये लेंथ वाइज है, तो मैंने लेंथ पे गिना है, ऐसे नहीं गिनना है। हमें इस लेंथ वाले लाइन पे ही गिनना है 10, 10। अब दिस साइड 10 mm के बाद एंड तक डार्क पोर्शन है, और इधर साइड 10 mm के इस तरफ डार्क पोर्शन, बीच में गैप है। अब ये जो बीच में गैप मिला था उसे मैं इरेज कर रहा हूँ। सो यहाँ से ये कितना है ये गिनने के बजाय मैंने सेंटर फाइंड आउट करके दोनों तरफ डिस्टेंस ले लिया। अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस गिनना चाहता हूँ तो टोटल 80 mm है। 80 में से अगर 20 mm चला गया तो 60 mm। सो 60 का हाफ 30 इधर होगा, 30 इधर होगा। लाइकवाइज आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब ये जो दो पॉइंट्स मिल गए हमें, यहाँ से अगर देखा तो ये वर्टिकल जा रहा है, लेकिन ये वर्टिकल हाइट कितना है,
तो यहाँ पर भी हाइट दिया नहीं है, तो हम इसको भी प्रोजेक्ट करके देखते साइड व्यू में। तो ये हाइट दिख रहा है हमें 30, क्योंकि इसी की हाइट होगी 30 mm। अब ये वर्टिकल है, अभी तक जो ड्रॉ किया था ये लेंथ वाइज था, अब ये हाइट वाइज है वर्टिकल। तो अब हम ड्राफ्टर को हाइट को मैच करेंगे। ये जो मिडल एक्सिस बनाया था वो हाइट का था। सो अब हाइट को मैच किया, यहाँ से ड्रॉ करना है। हाइट है हमारा 30 mm, सो 10 20 30 एग्जैक्ट हाइट को मैच करते हुए 30 mm। इस कॉर्नर से भी 30 mm, तो यहाँ पर भी 30 mm, 60 से काउंटिंग करो, 10 20 30। सो ये भी 30 mm हो गया। अब 30 mm के बाद ये बाहर आ रहा है, और ये जो बाहर आ रहा है वो लेंथ को पैरेलल है। तो मैं ड्राफ्टर को क्या करूँगा, लेंथ को मैच कर लूँगा और ड्राफ्टर को लॉक कर लूँगा। अब मैं यहाँ से लेंथ वाइज ड्रॉ करने वाला हूँ, लेकिन ये डिस्टेंस ड्रॉ कितना करना है। यहाँ से तो टोटल 80 है, लेकिन ये जो हेड देखा तो ये यहाँ से यहाँ तक 80 नहीं है। तो मैं इस हेड की लेंथ गिनना चाहता हूँ। तो यहाँ देखा तो R20, मतलब अगर रेडियस बना होगा तो यहाँ एक सेंटर लाइन होगी ऐसे, यहाँ से एक सेंटर लाइन होगी, सॉरी, वैसे ही यहाँ से एक सेंटर लाइन, यहाँ एक सेंटर लाइन, मतलब ये सेंटर रख के इतना आर्क बनाया तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 20। ये सेंटर रख के इधर का आर्क बनाया तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 20 20 20 40, और सेंटर में है 20। सो ये हेड की लेंथ है टोटल 60। अब 60 में से अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 है और 20 का गैप है, तो इधर 20 mm इधर 20 mm स्ट्रेट है, और ये दोनों लाइन सेगमेंट इस लेंथ को पैरेलल है। तो मैंने लेंथ को पैरेलल मैच कर लिया, इन दोनों एंड पे आ गया हूँ। यहाँ से अब 20 mm राइट की तरफ, 10 20 डार्क लाइन, और इधर से भी लेफ़्ट की तरफ 20 mm, सो 10 20 यहाँ तक आ गया ये। सो हमने ये दो लाइन सेगमेंट बना लिए। अब वर्टिकल जो बनाना है तो यहाँ तक ही स्ट्रेट है, बाद में कर्विकल आ रहा है, तो ये स्ट्रेट कितना है वो निकालना है। लेकिन अभी यहाँ पे स्ट्रेट का दिया नहीं है, लेकिन टोटल दिया है। टोटल कितना है 50 mm। अब 50 mm में से इतना तो ये रेडियस ही हो गया 20 का, तो ये कितना बच गया 30, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 mm है, दिस इज़ 50। सो ये अगर 50 है तो यहाँ से इतना तो रेडियस पार्ट आ गया 20 का, तो ये रेडियस हो गया 20, तो जो नीचे का पोर्शन बच गया 50 माइनस 20, सो 30 mm स्ट्रेट वर्टिकल। तो अब मैं वर्टिकल एक्सिस को मैच कर रहा हूँ, और इस पॉइंट से 30 mm ऊपर की तरफ, 10 20 30, और वैसे ही इधर से भी 30 mm ऊपर की तरफ, 10 20 30। सो यहाँ तक मैंने बना लिया। लेकिन अब साइड व्यू में मैं देख रहा हूँ, तो साइड व्यू में ओ पॉइंट से विड्थ वाइज, ये हमने विड्थ लिया था 25 mm, विड्थ वाइज 25 है बॉटम में। सो ये विड्थ है, ओ पॉइंट से स्ट्रेट विड्थ वाइज 25, तो ओ पॉइंट से विड्थ वाइज 25, ये हो गया डार्क। अब विड्थ के बाद हाइट है 20, ये ओ से हाइट 20 आ गई जो हमने लिए ली है, तो इधर वाले एंड से भी हाइट 20 होगा। ओ पॉइंट ये आ गया। साइड से देखते हो तो ये 20 mm हाइट ऑलरेडी ड्रॉ किया, 25 विड्थ ड्रॉ कर ली, 25 विड्थ से फिर 20 mm हाइट होगा, तो हम हाइट को मैच कर रहे हैं, और 20 mm यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे डाल। अब जैसे ये बॉटम लाइन जॉइन दिख रहा है, वैसे ये 20 mm वाली ये लाइन भी जॉइन दिख रही है। तो यहाँ से ये 20 mm और ये 20 mm हाइट, इन दोनों को विड्थ के साथ मैच कर रहे, और विड्थ वाइज इन दोनों लाइन को जॉइन कर रहे। क्यों विड्थ को, क्योंकि ये हमारी विड्थ थी, ये विड्थ को ही पैरेलल है, तो यहाँ पर भी विड्थ को पैरेलल आ गया। अब हम 3D बनाने वाले, जैसे यहाँ से 25 गया है वैसे यहाँ से भी 25 गया होगा,
तो हम इसी विड्थ को मैच करेंगे, इस कॉर्नर पे लेके आएंगे और यहाँ से 20 और 10, 20, 25 यहाँ तक आ रहा है, तो इतना डार्क कर लिया। अब जैसे ये वाला है तो ये कॉर्नर भी ज्वाइन होगा, लेकिन बीच में कंस्ट्रक्शन है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन में लाइट ड्रॉ करके रखते हैं ताकि हमारा बेस थोड़ा क्लियरली दिख जाए। सो ये वाला 25 और 25 ये दोनों लाइंस हम कंस्ट्रक्शन में बना रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट के पीछे जा रहा है वो ड्रॉ नहीं कर, मतलब ये बेस है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये टी जैसा वर्टिकल पार्ट आ गया। कितने डिस्टेंस के बाद, ये डिस्टेंस के बाद। तो यहाँ से जैसे विड्थ गया तो यहाँ से भी विड्थ गया होगा, इस हॉरिजॉन्टल फेस को फिर ये वर्टिकल पार्ट अटैच हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस विड्थ को यहाँ मैच कर रहे हैं और इस कॉर्नर से विड्थ वाइज एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ से ऐसे एक विड्थ वाइज लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ से इतना लाइन डार्क था, यहाँ पर भी डार्क था, तो ये भी हम डार्क कर लेंगे क्योंकि कम से कम इतना तो विजिबल है। तो ये वाला पोर्शन डार्क कर लिया। अब इस सेगमेंट से जैसे वर्टिकल 30 गया, यहाँ से भी वर्टिकल 30 गया होगा, लेकिन बाकी का हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल हाइट 30 ड्रॉ करेंगे लेकिन कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ से 30 mm 10, 20, 30 यहाँ तक आ गया, ये कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करके रख दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल पार्ट है। अब ऊपर वाला जो पार्ट है इसका बात कर रहे, ये जो यहाँ पे हमने बनाया, इसको भी जब हमने साइड व्यू में देखा तो 25 का ही विड्थ है। सो ये कॉर्नर, मतलब ये वाला कॉर्नर, यहाँ अगर देखा तो ये कॉर्नर, ये भी 25 विड्थ है। तो इस कॉर्नर से विड्थ वाइज 25 ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर से हम विड्थ को मैच करेंगे और ये वाला जो कॉर्नर है, हेड का जो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, यहाँ से 25 विड्थ वाइज 10, 20, 25 यहाँ आ गया, इसे डार्क ड्रॉ कर लिया। अब ये हेड 25, तो जैसे यहाँ से वर्टिकल 30 गया तो ऐसे बैक साइड से भी वर्टिकल 30 गया होगा। तो अब हाइट को मैच कर रहे, ये हेड है, हेड ऐसे वर्टिकल आ गया, देखिए यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल आ गया, तो ये भी यहाँ से अगर यहाँ तक ऐसे वर्टिकल जाएगा। सो 30 mm था, तो ये भी हम 30 mm तक वर्टिकल ड्रॉ कर लेंगे, 10, 20, 30। अब नीचे का साइड, ये तो आपके वर्टिकल पार्ट के अंदर गया, इसका ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन थी उसे इरेज कर दिया। और आउटसाइड वाला ये पोर्शन अभी भी दिख रहा है थोड़ा सा, तो उसे डार्क करना पड़ेगा क्योंकि वो बेस का आउटलाइन है और ये हाइड नहीं हुआ है तो डार्क में आएगा। आइसोमेट्रिक में एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी हिडन लाइन नहीं होती है। तो जो भी रहेगा वो डार्क लाइन। अगर कुछ हाइड हो गया है तो उसे ड्रॉ नहीं करना है। जैसे ये बेस के टॉप से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ तक इस हेड के नीचे है, वो हमें दिख रहा है। इसके बाद ये हेड के अंदर चला गया, मतलब इस हेड के वजह से हाइड हो गया। तो जो हाइड हो गया है उसे ड्रॉ ही नहीं करना है, हिडन लाइन से भी ड्रॉ नहीं करना है। सो हमारा ये एग्जैक्ट वर्टिकल पोर्शन सिर्फ यहाँ तक ही दिखेगा, बाकी का उसके पीछे हाइड हो गया। सो आइसोमेट्रिक में कभी भी हिडन लाइंस बनाने नहीं है। तो अभी तक हमने क्या किया, बेस बनाया, ये वर्टिकल पार्ट बनाया और ये टी वाला जैसे ये पोर्शन बना दिया। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे टॉप पे सेंटर में 20 mm स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये सेंटर आएगा कैसे, जब यहाँ से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होता और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन होता तो ये कॉर्नर बन जाता। सेम यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कॉर्नर बन जाता। सो यहाँ से यहाँ तक 60 mm है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक भी 60 होता। हाइट वाइज कितना होता, 100। हमने हाइट वाइज 100 की ये लाइन बना ली है। अब उस हाइट वाइज में सेंटर में 60 mm का ये पोर्शन है हेड का, उस 60 mm में भी सेंटर का 20 mm ही डार्क है। तो अब हम क्या करेंगे,
इस लाइन को मैच कर लिया। ये लाइन एक्चुअल में 80 mm थी, तो 80 mm का हम सेंटर निकाल लेंगे। 10, 20, 30, 40 ये हो गया सेंटर। सेंटर से 10 mm दिस साइड, 10 mm दिस साइड, सो दिस इज़ 20 mm डार्क लाइन। सो इतना 20 mm डार्क है। उसके बाद 20 mm एक्स्ट्रा है इधर साइड 20 mm, दैट्स मीन्स टोटल 60 mm का है। सो ये हो गया इतना पोर्शन 20 mm। अब 20 mm से अगर मैं स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ तो इट इज़ 20 mm, यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ तो हाइट वाइज 20 mm। तो अब मैं इसका कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ। सो अगर मैं इस हेड को, इस लाइन को अगर और बढ़ाता तो ये ऊपर के लाइन तक टच हो जाती, इस लाइन को और बढ़ाता तो ऊपर के लाइन तक टच हो जाती, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है। सो यहाँ से कंस्ट्रक्शन में बना रहा हूँ। सो यहाँ तक आ गया। सो यहाँ से ये अगर 60 है तो ये भी 60 है, करेक्ट। अब इन दोनों कॉर्नर पे कर्व है, अब वो कर्व बनाना है। सो आइसोमेट्रिक में अगर आपको एक क्वार्टर आर्क बनाना है, दिस इज क्वार्टर आर्क, क्वार्टर सर्कल। अगर ये यहाँ से ऐसे बनाता तो सेमी सर्कल होता, कंप्लीट बनाता तो फुल सर्कल होता। आइसोमेट्रिक में जब भी आपको सर्कल बनाना है, वो भले ही क्वार्टर सर्कल हो, सेमी सर्कल हो या कंप्लीट सर्कल हो, आपको बॉक्स बनाना पड़ता है। सो बॉक्स बनेगा हर बार डायमीटर बाय डायमीटर का। यहाँ पे रेडियस कितना है 20। सो सर्कल के लिए जब भी आपको सर्कल बनाना है, आइसोमेट्रिक सर्कल, सो बॉक्स बनेगा। बॉक्स के साइज रहेगा डायमीटर बाय डायमीटर। यहाँ पे डायमीटर कितना है, डायमीटर इज़ 40 mm, क्योंकि रेडियस दिया है 20। सो 40 बाय 40 का बॉक्स बनेगा। अब उस बॉक्स का भी दो साइड, बॉक्स साइड्स जो रहेंगे वो पैरेलल रहेगा। टू साइड्स पैरेलल टू ईच डायमेंशन जिसमें वो सर्कल दिख रहा है। जैसे यहाँ पर ये सर्कुलर दिख रहा है, किस व्यू में दिख रहा है सर्कुलर, फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में कौन से दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ और हाइट। तो ये जो बॉक्स बनेगा उसके दो साइड्स पैरेलल टू लेंथ होंगे और दो साइड्स पैरेलल टू हाइट होंगे। सो आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है तो बॉक्स बनाना पड़ता है। बॉक्स रहेगा डायमीटर बाय डायमीटर साइज का, लेकिन उस बॉक्स के दो साइड्स पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू हाइट। क्यों, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में दिख रहा है। अगर यही सर्कुलर अगर यहाँ पे दिखता साइड व्यू में, तो साइड व्यू में दो डायमेंशंस होते हैं, विड्थ और हाइट। तो उस केस में बॉक्स के जो साइड्स होते हैं वो दो साइड्स विड्थ को पैरेलल और दो साइड्स हाइट को पैरेलल होते हैं। सो हमें ये चीज़ें को ध्यान में रखना है कि वो सर्कल किस में दिख रहा है। तो ये फ्रंट व्यू में दिख रहा है। बॉक्स बनेगा डायमीटर बाय डायमीटर का, जिस व्यू में दिख रहा है उसके दो डायमेंशन को पैरेलल दो साइड्स रहेंगे। सो फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट। तो अभी हम यहाँ पे कॉर्नर से बना रहे। अगर मैं कॉर्नर से यहाँ तक लूँ तो ये हो गया रेडियस, आगे लूँ तो फिर रेडियस, सो टोटल डायमीटर। तो मैं यहाँ से पहले डायमीटर मार्क कर लेता हूँ क्योंकि बॉक्स हमारा बनेगा डायमीटर बाय डायमीटर का। सो यहाँ से बॉक्स लेंथ वाइज 20, यहाँ से 20, यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया 20। सो ये साइड्स यहाँ से ऐसे जॉइन हो जाएंगे। थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया था, इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। सो ये होगी कंस्ट्रक्शन लाइन। सो 20 और यहाँ तक 20, ये हो गया टोटल डायमीटर। वैसे वर्टिकल भी, सो वर्टिकल भी हमें 20 बाय 20 लेना है। सो यहाँ तक आ गया 10, 20 और 10, 20 यहाँ तक। सो यहाँ पर भी हो गया वर्टिकल हाइट। अब ये जो साइड है ये लेंथ को पैरेलल है और ये हाइट को पैरेलल है, तो दूसरी साइड भी लेंथ को, क्योंकि दो साइड्स लेंथ को पैरेलल होनी चाहिए।
सो यहाँ जो 40 mm आया था वहाँ से कंस्ट्रक्शन में। सो अब ये दो साइड लेंथ को पैरेलल, अब हाइट वाइज यहाँ पे एक साइड आ गई थी, अब इसी को लॉक करके यहाँ से भी साइड ड्रॉ करता हूँ। सो ये बन गया हमारा आइसोमेट्रिक बॉक्स। सो ये जो है वो है हमारा आइसोमेट्रिक बॉक्स। मैं अभी के लिए नंबर दे देता हूँ ABCD। हमें एक्चुअल में नंबर नहीं देना है, ये सिर्फ अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में हम इरेज कर देंगे। तो हमारा आइसोमेट्रिक बॉक्स क्या बन गया, ABCD। सो AB एंड CD ये पैरेलल टू लेंथ है, डायमीटर 40 AD और CB ये पैरेलल टू हाइट है, डायमीटर वाइज 40। अब हमें करना क्या है, आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है तो रिमेंबर हमें 4 सेंटर मिलेंगे। 2D सर्कल बनाना है तो हमें एक सेंटर की ज़रूरत होती है और हम एक रेडियस लेके ड्रॉ करते हैं। आइसोमेट्रिक में हमें हमेशा डायमीटर बाय डायमीटर का बॉक्स बनाना पड़ेगा और 4 सेंटर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उन 4 में से जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है वो 2 सेंटर कॉर्नर होते हैं। अब यहाँ अगर देखता हूँ तो BD इज़ अ लॉन्गर डायगोनल, AC इज़ अ शॉर्टर डायगोनल। तो जो शॉर्टर डायगोनल वाले कॉर्नर है वो हमारे 2 सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर 1 एंड दिस इज सेंटर 2। ये भी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ अभी के लिए हम नोटेशन दे रहे 1 और 2। तो हमें 2 सेंटर मिल गए, अभी और 2 सेंटर चाहिए। वो कैसे मिलेंगे, तो जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है वो 2 सेंटर हो गए। अब इन दोनों सेंटर को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। सो 1 अगर सेंटर लेता हूँ तो 1 के लिए AB इज़ अ एडजेसेंट साइड, 1 के लिए AD इज़ अ एडजेसेंट साइड, लेकिन 1 सेंटर के लिए CD इज़ अपोजिट साइड। तो मैं अपोजिट साइड का पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो ये टोटल 40 mm डायमीटर का साइड बनाया था, तो मिड पॉइंट आ जाएगा 20। सो यहाँ पे आ गया, सो ये हो गया मिड पॉइंट। सो 1 का अपोजिट साइड है CD, इसके मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ 1 के साथ, कंस्ट्रक्शन में ही होना चाहिए। सो 1 टू अपोजिट साइड मिड पॉइंट लाइन ज्वाइन कर दी। अब 1 के लिए ये भी अपोजिट साइड है CB, 2 अपोजिट साइड थी CD और CB, तो CB का भी मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। सो CB का भी 20 mm पे मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, CB का मिड पॉइंट भी 1 के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। सो 1 सेंटर को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया। अब 2 जो सेंटर है, 2 सेंटर को भी इस बॉक्स के 2 के रेफरेंस में अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। सो 2 के लिए अपोजिट साइड हो गया AB, जिसका मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो मैं AB का जो मिड पॉइंट है उसे 2 के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। और 2 के लिए दूसरी अपोजिट साइड है AD, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो इस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को भी 2 से ज्वाइन कर लेता हूँ। सो अभी तक जो हमने किया वो क्या किया है, डायमीटर बाय डायमीटर का बॉक्स बनाया, वो बॉक्स के 2 साइड पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू हाइट। उसके बाद जो शॉर्टेस्ट डायगोनल बन रहा था वो 2 कॉर्नर को हमने सेंटर 1 सेंटर 2 बोल दिया। सेंटर 1 को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया। 2 अपोजिट साइड थे तो दोनों अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। सेम वे से सेंटर 2 को उसके 2 अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया। अब ये जो मिड पॉइंट वाले लाइंस जो बनाए थे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, ये हमारे रिमेनिंग 2 सेंटर है। सो सपोज सेंटर 3 एंड दिस इज सेंटर 4। तो जब भी आपको कोई सर्कल बनाना है 4 सेंटर निकालना है, सेंटर 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर 4। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, सेंटर 2 पे अगर रखा, शार्प है सेंटर 2 पे, तो रेडियस हम सेंटर 2 से जाने वाले मिड पॉइंट लाइन का मिड पॉइंट लेंगे, तो यहाँ तक आ गया। सो सेंटर 2
मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस आर्क बनाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का आर्क बन जाएगा। सो ये वाला मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस और ये रहेगा हमारा आर्क। अगर मैं वन सेंटर यूज़ कर रहा तो वन सेंटर पे शार्प एज रहेगा और मिड पॉइंट तक का रेडियस लूँगा। सो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक तो यहाँ एक आर्क बन जाएगा। अगर मैं थ्री सेंटर यूज़ कर रहा हूँ सो थ्री इज़ माय शार्प एज सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट तक यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा, इधर एक आर्क बन जाएगा। सो मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये ऐसे यहाँ एक आर्क आ जाएगा। सेम वे अगर फोर सेंटर यूज़ कर रहा हूँ तो फोर शार्प एज यहाँ तक का रेडियस लूँगा और यहाँ पे भी एक आर्क बना दूँगा। मतलब अगर मैं चारों सेंटर टू यूज़ किया तो ये आर्क बन गया, वन यूज़ किया तो ये वाला आर्क बन गया, थ्री यूज़ किया तो ये आर्क बन गया, फोर यूज़ किया तो ये। सो इट बिकम कंप्लीट सर्कल। लेकिन ये सर्कल कौन सा है? आइसोमेट्रिक सर्कल। लेकिन अभी प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे सिर्फ एक ही क्वार्टर आर्क बनाना है। सो मुझे सिर्फ ये वाला आर्क चाहिए, तो इस आर्क के लिए मुझे सिर्फ टू सेंटर यूज़ करना है। सो टू सेंटर यूज़ करूँगा, ये आर्क बनाऊँगा। बाकी का आर्क नहीं चाहिए तो बाकी के सेंटर मैं यूज़ नहीं करूँगा। सो बाकी के आर्क मुझे ड्रॉ नहीं करना है। सो कोई भी एक अदर दैन टू सेंटर मैंने यूज़ नहीं किया तो एक ही आर्क बन गया। लेकिन आपको बॉक्स तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। भले ही आपको एक क्वार्टर आर्क बनाना हो लेकिन बॉक्स आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा। चार सेंटर निकालने पड़ेंगे, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटर यूज़ करना है और उसके हिसाब से उतना एक सेंटर एक क्वार्टर आर्क इतना बनते जाएगा। चार सेंटर यूज़ करोगे, चार क्वार्टर आर्क बनेंगे, इट बिकम कंप्लीट सर्कल। ये बाकी का हमें नहीं चाहिए, ये सिर्फ मैंने समझने के लिए दिया था। एग्ज़ाम में कभी भी ये लिखना नहीं है नंबर्स। सो यहाँ तक एक क्वार्टर। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक आर्क है इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर से भी हमें बॉक्स बनाना ही पड़ेगा और बॉक्स बनेगा डायमीटर बाय डायमीटर का। सो हाइट वाइज मार्क कर लेते पहले। सो ये हो गया 10, 20 एंड 20, सो ये हो गया 40 mm। अब यहाँ से लेंथ वाइज 40 mm, तो ये 20 है, यहाँ तक 20 mm, तो ये टोटल हो गया 40। इस 40 से फिर हाइट वाइज 40 mm डायमीटर जो है, सो 20 एंड 40, तो यहाँ पे ही आ रहा है। सो ये 40 mm, ये 40 mm, ये 40 mm। अब यहाँ नीचे वाला साइड भी 40 mm होना चाहिए लेंथ वाइज, तो यहाँ से भी लेंथ वाइज 40 mm करते हैं। सो अब इसको मैं फिर से नाम देता हूँ समझने के लिए। सपोज दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R, दिस इज़ S, PQRS। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक बॉक्स है PQRS, जिसमें दो साइड लेंथ को पैरेलल है, दो साइड हाइट को पैरेलल है। अब यहाँ पर भी लॉन्गर डायगोनल है PR और शॉर्टर डायगोनल है SQ। तो शॉर्टर डायगोनल को हम सेंटर 1 और सेंटर 2 बोल देते हैं। अब सेंटर 1 को इस बॉक्स के अपोजिट साइड के साथ ज्वाइन करना है। 1 के लिए अपोजिट साइड है RQ, उसका मिड पॉइंट आ गया यहाँ पर। सो ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ है 1 से जाने वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन। अब 1 के लिए दूसरी अपोजिट साइड है QP, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ है, तो हम 1 को इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो 1 सेंटर को हमने अपोजिट साइड के साथ ज्वाइन कर लिया। अब 2 सेंटर को अपोजिट साइड के साथ ज्वाइन करना है। 2 के लिए अपोजिट साइड है SP, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो Q2 सेंटर को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अब 2 का दूसरा अपोजिट साइड है RS, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है,
तो 2 को आर एस के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ आ गया। अब देख लीजिए, ये जो हमारा पी क्यू आर एस था उसमें से एस और क्यू सेंटर 1 सेंटर 2 हो गया। 1 से ये दो लाइंस मिड पॉइंट लाइन गई है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। 2 से ये दो लाइंस गई है और ये दो जो मिड पॉइंट लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। सो दिस इज सेंटर 3 एंड दिस इज सेंटर 4। तो फिर से हमें 4 सेंटर मिल गया, 1 2 3 4। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सेंटर यूज़ करना है। अगर मैं 2 सेंटर यूज़ करता हूँ तो यहाँ तक रेडियस लूँगा और यहाँ आर्क बनाऊँगा। मुझे चाहिए ये वाला आर्क, तो मैं 3 सेंटर यूज़ करूँगा और यहाँ तक रेडियस लेके मिड पॉइंट 3 से जाने वाले मिड पॉइंट तक, और यहाँ से एक आर्क बना लूँगा। सो आर्क के लिए सेंटर 3, रेडियस रिस्पेक्ट टू रेडियस लेना है और आर्क बनाना है। छोटा आर्क है, थोड़ा दिक्कत जा रहा है। सो अब हमने ये वाला एक आर्क बनाया 20 mm स्ट्रेट, फिर इधर का एक आर्क। सो हर बार आपको जितना भी सर्कल बनाना है, बनाना तो पूरा बॉक्स पड़ेगा ही, उसमें से सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा और चारों सेंटर में से जो रिक्वायर्ड है सिर्फ उतने सेंटर यूज़ करने हैं। तो जो हमने ये आर्क बनाने के लिए सेंटर यूज़ किया था वो था ये वाला, जिसको हमने नाम दिया था 2, और जो ये छोटा आर्क बना है उसके लिए हमने यूज़ किया था ये वाला, जिसको नाम दिया था 3। अब यही कर्व बैक साइड में भी है, तो बैक साइड में फिर से बॉक्स नहीं बनाना है। हम क्या करेंगे, इसी कर्व को सिर्फ शिफ्ट करेंगे। ये विड्थ वाइज शिफ्ट करना है। ये वाला कर्व यहाँ से ड्रॉ होगा, ये विड्थ है 25। तो इस आर्क को अगर मुझे विड्थ वाइज शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस आर्क को जिस सेंटर से ड्रॉ किया था उससे ही शिफ्ट कर दूंगा। सो विड्थ वाइज शिफ्ट करना है तो विड्थ को मैच किया। इस आर्क को बनाते समय 2 को यूज़ किया तो मैं इस सेंटर 2 पे लेके गया हूँ और 25 10 20 25, सो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सो मैंने 2 को ही शिफ्ट कर दिया 25 से। दिस इज सपोज 2 डैश। सो अब कर क्या रहा हूँ मैं, ओरिजिनल 2 से जो आर्क का रेडियस था उतना लिया, इतना ही था, यही रेडियस लेके मैंने ड्रॉ किया था। अब सेम रेडियस शिफ्टेड 2 पे रखा और फिर से आर्क बना रहा हूँ। इस बार पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन में तो एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट 3 वाला, ये वाले आर्क को भी मुझे शिफ्ट करना है, तो फिर से विड्थ को मैच किया, 3.3 सेंटर को शिफ्ट करना है 25 mm से 10 20 25। सो आर्क को शिफ्ट करना है तो फिर से मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, सेंटर को शिफ्ट कर रहा हूँ। सेंटर शिफ्ट होके इधर आ गया 3 डैश। ओरिजिनल 3 वाला रेडियस ले रहा हूँ, ओरिजिनल 3 वाला रेडियस इतना, शिफ्ट वाले 3 पे रखा और फिर से एक एक्स्ट्रा आर्क बना लिया। इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना है, कंस्ट्रक्शन में बनाना है। अब जिस डायरेक्शन में मैंने ये दोनों सेंटर शिफ्ट किए विड्थ वाइज, विड्थ को मैच कर रहा हूँ और ये जो आउटर सर्कल्स बने हैं वहाँ से एक टेंजेंट बना रहा हूँ विड्थ वाइज। सो ये विड्थ वाइज दोनों को ज्वाइन करने वाला एक टेंजेंट। अब इस टेंजेंट लाइन के अंदर जो आर्क आ गया उसे इरेज कर दूंगा। विड्थ वाइज ये वाला पॉइंट अभी मुझे शिफ्ट करना है, तो विड्थ को मैच किया, जहाँ से ये छोटा आर्क शुरू हो गया था उस पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। तो इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है तो इसके अंदर वाला आर्क को इरेज कर दिया, क्योंकि ये आर्क यहाँ से शुरू हो रहा है तो सेम पॉइंट से इधर शिफ्ट होगा। वैसे ये वाला आर्क यहाँ एंड हो रहा है, विड्थ वाइज इस एंड को भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ एंड हो गया। सो एक्स्ट्रा वाला आर्क इरेज कर रहा हूँ। अब ये और ये पॉइंट जॉइन है तो ये और ये पॉइंट जॉइन कर लेता हूँ। ये डार्क लाइन से जॉइन हो जाएगा।
जो अब पहले कंस्ट्रक्शन में आर्क बनाए थे, जैसे 3 से रेडियस लिया था, शिफ्टेड 3 पे रखा था और आर्क बनाया था। अब उस आर्क को मैं डार्क कर रहा हूँ। सो अभी इस आर्क को डार्क कर लो। पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि एक्स्ट्रा हमें इरेज भी करना था। वैसे ही शिफ्टेड 2 पे रख के जो आर्क मैंने बनाया था, अब इसको भी जितना पोर्शन बचा है सिर्फ उतना ही पोर्शन में डार्क कर रहा हूँ। सो दिस इज अवर एक्चुअल आइसोमेट्रिक व्यू फॉर द गिवन क्वेश्चन। नंबर सिर्फ हमने समझने के लिए लिया था, इसलिए मैंने वो इरेज कर दिया। अब ये जो ओरिजिनल आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया था, ओरिजिन के अलावा आउटसाइड का हमें इरेज करना है। ओरिजिनल आइसोमेट्रिक बॉक्स, रिमेंबर ये वाला हमने सर्कल बनाने के लिए बनाया था, इसे इरेज नहीं करना है। ये भी हम इसलिए इरेज कर रहे हैं ताकि हमारी जो डायग्राम है वो थोड़ा सा उभर के आ जाए। सो ये बन गया हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। अब फ्रंट व्यू यहाँ से है, मतलब यहाँ से देखते समय फ्रंट व्यू दिखने वाला है। सो एक्स डायरेक्शन मेरा इस तरफ है, तो मैं यहाँ से एक एरो दे दूँगा एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ से देखते हुए फ्रंट व्यू है, तब जाके यहाँ से देखते हुए लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब जो हमारा काम बच गया वो है डायमेंशंस देना। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है तो डायमेंशन देना पड़ेगा। रिमेंबर, अंदर जितना भी गंदा हो जाए ये कंस्ट्रक्शन इरेज नहीं करना है, क्योंकि ये जो बॉक्स बने हैं, ये बॉक्स बने इसलिए आर्क बना है। ये सेंटर शिफ्ट किया इसलिए यहाँ पे आर्क वापस आ गया। तो ये हमारा मार्क्स स्कोरिंग के लिए चाहिए, इसलिए इसे इरेज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3D बनाने के बाद अदर दैन योर मेन ऑब्जेक्ट बाकी सब इरेज कर देते हैं। सो वहाँ पता ही नहीं चलता एग्जामिनर को कि आपने ये आर्क कैसे बनाया, बॉक्स बनाया था नहीं बनाया था, तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हमेशा रखना है, ठीक है। इसलिए जितना हो सके उतना कंस्ट्रक्शन लाइट बनाइए तो आपका ऑब्जेक्ट ठीक से दिखेगा। अब डायमेंशंस की बात आती है, तो जहाँ पर डायमेंशंस दिए वो सारे अब 3D में देना है। तो जैसे यहाँ दिया है 80 mm, तो लेंथ वाइज दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी वर्टिकल हाइट को मैच कर रहा हूँ। यहाँ से एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लिया, यहाँ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लिया। अब मैं लेंथ को मैच कर रहा हूँ, लेंथ को मैच कर लिया। हर डायमेंशन आपके ये जो आउटलाइन है उससे 5 mm दूर होना चाहिए, लेकिन अब वो गिनना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैं स्केल में अभी दिखा रहा हूँ आपको, जैसे 19, 18, 17, 16, ये जो लेंथ दिया है डिवीजन का ये एक्स्ट्रा है, तो मैं इस सारे एंड को इस लाइन के साथ मैच कर रहा हूँ। तो अब 19, 18, 17 ये जो ओरिजिनल लाइन थी उसको मैच होगी। अब स्केल को ट्रेस कर रहा हूँ तो ये लाइन बन गई। तो ये एग्जैक्ट हर बार मैं इस लाइन को मैच करूँगा तो हर तरफ इक्वल डिस्टेंस आएगा। अब एरो कैसे देना है, एक छोटा सा डैश बनाइए और इस डैश को एंड के साथ ज्वाइन करो, छोटा सा डैश एंड के साथ ज्वाइन करो। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। एक्स्ट्रा अगर आपने बनाया है ये वर्टिकल लाइन उसे इरेज कर दो, और इसके बीच में इस लाइन सेगमेंट के बीच में आपको डायमेंशन देना है, दिस इज़ 80 mm। और डायमेंशन भी ऐसे देना है कि इस लाइन के ऊपर आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे लिख रहा हूँ। लाइन के रेफरेंस में 80। अब दूसरा ये 20 mm ये वाला हाइट, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इधर साइड 20 दूँ, तो अब मैं विड्थ को मैच कर रहा हूँ। यहाँ से दो कंस्ट्रक्शन लाइन, एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन, अब विड्थ को मैच कर रहा हूँ। अब ये जो 5, 6, 7 ये जो लाइन सेगमेंट है इसको इस लाइन के साथ मैच किया और स्केल की ये वाली एज को ट्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ जितना डिस्टेंस था एग्जैक्ट इधर भी उतना ही बन गया, एक्सेस इरेज कर दिया। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा डैश और इसको एंड के साथ ज्वाइन, छोटा डैश एंड के साथ ज्वाइन।
अब यहाँ लिखूँगा तो इस लाइन के ऊपर 20। सो हमेशा याद रखिए लाइन के ऊपर लिखना है। यहाँ लिखना है तो ऐसे ऐसे नहीं लिखना है। नेक्स्ट, अब ये 30 mm देना है। अब मैं चाहता हूँ कि इधर साइड देना है मुझे सपोज, तो मैं अब लेंथ को मैच कर रहा हूँ, यहाँ से एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया और इस हेड की बॉटम को भी एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया। अब मुझे लेंथ वाइज देना है। अब मेरे पास लाइन सेगमेंट नहीं है तो मैं इस एज को कंसीडर कर रहा हूँ और इस एज को मैच किया, और जैसे मैंने अभी विड्थ के लिए किया था 6 और 7 के एंड पॉइंट को मैच किया और इसको लाइन को ट्रेस करते हुए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्सेस इरेज करना है, सो एक्सेस इरेज कर दिया, एक छोटा सा डैश और इसको ज्वाइन कर लिया, छोटा सा डैश एंड के साथ ज्वाइन किया, एंड दिस इज़ 30 mm। सो सेगमेंट के सेंटर में लिख दो 30 mm। यहाँ जितने दिए उतने ही देने हैं, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से टोटल हेड की हाइट है हमारी 50 mm जो यहाँ दिया है, तो फिर से मैं लेंथ को मैच कर रहा हूँ और यहाँ पे इसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ हेड के, और इसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो 50 mm एक ही लाइन में आ जाएगा, इन लाइन 30 और एग्जैक्ट उसके ऊपर 50। सो यहाँ पर एरो बनाऊँगा, एक छोटा सा डैश एरो हेड, छोटा सा डैश एरो हेड, एंड दिस इज 50। विड्थ हमें 25 दिया है। अब विड्थ मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, ऑलरेडी इधर एक वर्टिकल लाइन आ गई। अब मैं सिर्फ विड्थ को मैच कर रहा हूँ और विड्थ को मैच करके ये वाले जो पॉइंट्स है उसको एज के साथ लाया और स्केल को रेफरेंस समझ के ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर छोटा डैश एरो, एंड दिस इज 25। सो सेंटर में 25। ये जो थिकनेस है इसके लिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जब तक आपके पास चॉइस है आप बाहर की तरफ ड्रैग करके डायमेंशन दे सकते हो तब तक दीजिए। यहाँ से अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ऐसे लगेगा कि ये नीचे तक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन बना के यहाँ डायरेक्ट एरो लिख रहा हूँ, दिस इज़ 20। अगर चॉइस है तो बाहर के साइड ही देना है, चॉइस नहीं है तभी मजबूरी में ही आपको यहाँ देना है। अब ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसे भी मैं बाहर साइड तक एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। अब इसके लिए मेरे पास कोई रेफरेंस के लिए एज नहीं, तो मैं ऐसे ही एक थोड़े से डिस्टेंस बाद ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm, ये वाला 20 mm। सो दिस इज़ 20 mm। अब बच गया रेडियस का पार्ट। जैसे यहाँ दिया है वैसे हम क्या करेंगे, इस रेडियस को टच करने वाला एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बना दिया, यहाँ से एरो दिखाया, एरो हेड जहाँ टच हो रहा है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे। और कभी भी एरो वाली लाइन को डायरेक्ट डायमेंशन नहीं लेना है, उसको एक छोटा हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बनाना है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखना है R20। ये भी मैं बाहर साइड ले सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होता है इसलिए मैं अंदर दे रहा हूँ। ये वाला भी R20 है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, यहाँ पे इसको एरो शो कर देता हूँ और R20, R स्टैंड फॉर रेडियस, तो यहाँ पर भी R20। अगर डायमीटर होता तो या तो वो सिंबल लिखते हैं या फिर फॉर डायमीटर, या तो वो ऐसे D40, लेकिन ये देने की रूटीन प्रैक्टिस नहीं है। रूटीन प्रैक्टिस में हम सिंबल देते 540। सो ऐसा सिंबल आ गया, मतलब वो हो गया डायमीटर। सो नाउ जितने यहाँ हमने डायमेंशंस दिए थे वो सारे यहाँ आ गए। नाउ दिस इज कंप्लीट आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ आवर रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन। सो होपफुली यू अंडरस्टूड कि हमें ड्रॉ क्या करना है। इस तरह से आपको पूरा ड्रॉ करना है एंड
फ्रंट व्यू देना ना भूले, क्योंकि यहाँ जो फ्रंट व्यू है इधर से देखने के बाद ही बनने वाला है। सो दिस इज अवर एक्चुअल रिक्वायर्ड आइसोमेट्रिक व्यू। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बाद आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। सो थैंक यू।